Welcome to G2M Gayatri Golden Mathematics. Today I discuss limit inferior and limit superior of a sequence and its related problems in CSIR NET examination. So what is limit superior? So let A and B bounded sequence of real number which is bounded above. We define limit superior of this sequence, of this bounded sequence. Okay. So let us take the supremum of a1, a2, a3 and so on of this. First I am taking the supremum value of this sequence. Then I find the limit superior. Okay. So the supremum of a1, a2, a3 is b1. Okay. Then I remove the term a1 from this sequence. I remove this term. This term is removed. Then what happens? The new sequence becomes a2, a3, a4 and so on. So what happens? The supremum term, maximum term of this sequence may be removed from here, may not be removed. If the sup term is removed, then what happens? Then the supremum of this a2, a3, a4 is less or equal to from supremum of a1, a2, a3 and otherwise both have same supremum. If the sup term is not removed, if a1 is not the supremum term, then b2 and b1 are equal. Okay. So what is the relation between b2 and b1? b2 is less or equal to b1. b1 is greater or equal to b2. Similarly, uh, the same fashion will continue. Then I removed a2 from this sequence and getting a new sequence a3, a4 and so on. So what happens? A new sequence constructed a3, a4 and so on, and the supremum of this sequence becomes b3 and b3 is less or equal to b2. Overall we find that b1 greater or equal to b2 greater or equal to b3 and so on. This means the sequence bn is a monotonically decreasing sequence, and I am considering I am discussing about bounded above sequence. So this is monotonically decreasing and bounded. This means this converges to its infimum. So the limit of limit superior of this sequence is infimum of b1, b2 and so on, bn. Okay. So limit superior of an, which is denoted by lim sup an or lim n tends to infinity supremum of n. This is equal to infimum of b1, b2 and so on. So limit superior of an is equal to this one. Okay. So this is limit superior of a sequence which is bounded above. Otherwise, if the sequence an is not bounded above, then the limit superior is what? Limit superior is plus infinity. This is the notation of limit superior. Okay. So this is all about limit superior of a sequence. Okay. Now define limit inferior of a sequence. The same concept is here. Let us consider a and b a sequence which is bounded below. Okay. So an is bounded below sequence. So let us take C1 is the infimum of A1, A2, A3 and so on. Then remove A1 from the first sequence. A1 is removed, then the new sequence is A2, A3 and so on. So when I remove A1, A1 may be the infimum term, otherwise A1 is less than from otherwise A1 is not the infimum term. A1 is greater than a greater term from infimum term. So this means what happens? Maybe the infimum term excluded or may not be the infimum term excluded from this sequence. When I am removing A1, two cases arises here. If infimum term is excluded, then the infimum of this sequence will be increases from this, otherwise both are same. So what is the relation between C1 and C2? C1 is
less than from C2, या C2 is greater or equal to C1. C1 is less or equal to C2, या C2 is greater or equal to C1. Similarly, these infimums are increases and increases because if this infimum term excluded, then the next infimum will be greater than from the first infimum. So in this scenario, we get that C1 is less or equal to C2 is less or equal to C3 and so on. That is Cn is monotonically increasing sequence and monotonically increasing bounded, hence this converges towards supremum. So limit inferior, which is denoted by this limit inferior, या limit n tends to infinity, infimum of an, this is barabar to supremum of C1 C2 and so Cn and so on. Okay, so yeah, otherwise if an is not a bounded below sequence, then limit inferior is barabar to minus infinity. So here we define about limit inferior and limit superior of a sequence. Now see certain important theorems on limit inferior and limit superior, which is very important for this CSIR NET examination, and we are very sure that there must be a questions from this section always in your examination. Okay, so be very comfortable with these theorems, with these results. Okay, so see what the theorem says exactly. The theorem says a sequence an is said to be convergent if and only if limit superior is equal to limit inferior and they exist finitely. So this theorem says a sequence कन्वर्स कब होगा, जब उसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर बोथ आर बराबर होगा एंड दे एग्जिस्ट फाइनाइटली. पहला फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, कारण लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर बोथ फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए एंड बोथ बराबर होना चाहिए. अगर ये होता है तभी हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज है. उसका मतलब सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर बोथ फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए एंड बोथ आर बराबर इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करा है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो दिस मीन्स इफ़ एंड ओनली कंडीशन, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो उसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर बराबर होगा. कन्वर्स कहाँ पे, फाइनाइट टर्म को अगर हाँ कन्वर्स करेगा मतलब ही होता है फाइनाइट को, तो उसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर बराबर होगा. अगर लिमिट सुपीरियर या लिमिट इन्फीरियर बराबर हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली एंड बराबर हो रहा है, तो उसका दिस इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेंट. ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम प्रॉब्लम में बार बार यूज करेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंड, सपोज एन ए बाउंडेड सीक्वेंस है, एन इज टू बी ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड इफ its limit superior is m, then there exists a subsequence that converges to m. तो उसका मतलब लिमिट सुपीरियर, जो हमारा लिमिट सुपीरियर होता है उसके लिए सीक्वेंस के पास ज़रूर सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो लिमिट सुपीरियर को कन्वर्ज करता है. तो लिमिट सुपीरियर के लिए सीक्वेंस के पास ज़रूर एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है जो सुपीरियर तक कन्वर्ज कर रहा है. और लिमिट इन्फीरियर अगर एम होता है सीक्वेंस का, तो उसके लिए भी सीक्वेंस के पास एक सबसीक्वेंस है जो लिमिट इन्फीरियर को कन्वर्ज कर रहा है. तो वही है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का बहुत ही खास रिजल्ट. तो अगर सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर कैपिटल एम है, तो सीक्वेंस के पास ज़रूर एक सबसीक्वेंस है जो कैपिटल एम को कन्वर्ज कर रहा है. और अगर उसका लिमिट इन्फीरियर स्मॉल एम है, तो सीक्वेंस एन के पास ज़रूर एक सबसीक्वेंस है जो स्मॉल एम को कन्वर्ज कर रहा है. तो उसको लेके हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो CSIR नेट एग्जामिनेशन में रिसेंटली आया था. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. यहाँ पे एक एन दे रखा है जो कि सबसेट ऑफ आर है, एन बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर, और एक का एन डिफाइन कर रहा है, एक फंक्शन है जो आर से 0 1 तक है
और कायन एक्स मीन्स एक इंडिकेटर फंक्शन है, वो 1 इंडिकेट करेगा जब हम आपका एक्स एन से है, एन ये सबसेट है आर का, और वो 0 इंडिकेट करेगा जब आपका एक्स एन से नहीं है तभी। तो ये इंडिकेटर फंक्शन दो टर्म को इंडिकेट कर रहा है, और एक 1 और 0 जब आप एक्स एन एक्स आपका एक्स एन से आ रहा है तब ये 1 इंडिकेट करता है, जब एक्स एन से नहीं है तब ये 0 इंडिकेट कर रहा है। तो और उसका जी एक्स जो है कायन एक्स का सुप्रीमम है और एच एक्स कायन एक्स का इन्फीमम है। तो ये बोल रहा है gx is if gx equal to hx equal to 1, this means that lim sup is बराबर to lim inf is equal to 1। this means what, lim sup और lim inf बराबर हो रहा है। अभी मैं पिछले थ्योरम में क्या बोल रहा था, अगर lim sup और lim inf बराबर हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली एंड बराबर हो रहा है, तभी क्या होगा ना, सीक्वेंस वहाँ कन्वर्स करेगा। उसका मतलब क्या होगा, कन्वर्स करेगा का मतलब क्या, सटन टर्म के बाद सीक्वेंस का सारे टर्म वहाँ जाएगा। तो सटन टर्म के बाद क्या होगा, इस जो ये काइनेक्स का सारे टर्म कहाँ जाएगा, 1 जाएगा। 1 कब जाएगा ना, जब एक्स एन से आएगा। तो यही तो बोल रहा है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सटन एम बिलोंग्स टू एन, सो दैट सटन mth टर्म के बाद सीक्वेंस का जो काइनेक्स क्या इंडिकेट करेगा, 1 इंडिकेट करेगा, हर मेंबर 1 पे जाएगा। उसका मतलब जो आपका स्मॉल एक्स कहाँ से आएगा, एन से आएगा। 1 कब इंडिकेट करेगा, जब ये एन से आएगा। तो सटन टर्म के बाद एक्स एन से आएगा। वही तो है, इनडायरेक्टली वही तो बोल रहा है। तो दोनों को मिक्सर करके वो एक ऑप्शन बना दिया, तो ये सही है। और ये बोल रहा है अगर जी एक्स एच एक्स 0 हो रहा है, दोनों बराबर और 0 हो रहा है, जी एक्स एच एक्स क्या है, लिमसुप और लिमिनफ अगर 0 हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा, सीक्वेंस 0 पे कन्वर्स कर रहा है। 0 पे कन्वर्स कर रहा है का मतलब क्या होगा, सटन टर्म के बाद उसका हर मेंबर 0 पे कन्वर्स करेगा। वो 0 पे कब करेगा, जब एक्स एन से नहीं आएगा तभी। बट ये बोल रहा है ये सटन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन, सो दैट सटन टर्म के बाद mth टर्म के बाद सीक्वेंस का हर मेंबर एन से आ रहा है, एन से आ रहा है तो वो 0 इंडिकेट नहीं करेगा। वो दोनों 0 उस लिमसुप लिमिनफ बराबर हो रहा है, मतलब सीक्वेंस 0 पे कन्वर्स कर रहा है। उसका मतलब ये बोल दिया कि सटन टर्म के बाद सीक्वेंस का मतलब काइन एक्स का हर मेंबर 0 पे जा रहा है। 0 पे कब जाएगा, जब एक्स एन से नहीं आएगा। बट ये बोल रहा है कि एक्स एन से जब सटन टाइम के बाद एक्स एन से आ रहा है, तो ये गलत है। दिस मीन्स ये ऑप्शन आपका फॉल्स है, ये सही नहीं है। और ये बोल रहा है आपका जी एक्स 1 है, इफ़ जी एक्स 1 एच एक्स 0, आई मीन लिमसुप 1 लिमिनफ 0, सो देयर एग्जिस्ट ए सबसिक्वेंस। अगर लिमसुप 1 लिमिनफ 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, हमने बोला था कि अगर सीक्वेंस का लिमसुप 1 है तो वहाँ एक सबसिक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, जिसका सीक्वेंस के पास एक सबसिक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो वहाँ एम को कन्वर्स करेगा, आई मीन 1 को कन्वर्स करेगा। ऑल्सो सीक्वेंस के पास एक सबसिक्वेंस है जो 0 को कन्वर्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिजल्ट। सो देयर एग्जिस्ट ए सबसिक्वेंस, शायद वहाँ पे सबसिक्वेंस था हाँ, सबसिक्वेंस और सीक्वेंस एक ही है। सो देयर एग्जिस्ट ए सबसिक्वेंस n1 n2 ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, सो दैट x बिलोंग्स टू an k। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसके पास बस ये भी है, मतलब एक सबसिक्वेंस है जो देयर एग्जिस्ट ए सबसिक्वेंस of distinct integers, so that x belongs to ank, and also there is a subsequence so that distinct integers n1 n2 and so on, so that x does not belongs to ank because उसका hx लिमिन 0 है, लिमिन सुप 1 है, लिमिन 0 है। उसका मतलब there exists a subsequence जो 1 पे जा रहा है एंड अनदर सबसिक्वेंस है 0 पे जा रहा है।
तो 1 पे कब जाएगा, जब x an से आएगा। 0 पे कब जाएगा, जब x an से नहीं आएगा। तो जब x an पे जा रहा है तभी भी एक सब्सिक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, और जब x an से नहीं जा रहा है तभी भी उसके पास एक सब्सिक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये बात बोल रहा है कि जब x an से जा रहा है तभी उसके पास एक सब्सिक्वेंस है। हाँ है, ज़रूर है, तो इसलिए ये सही है। और यहाँ gx और hx दोनों बराबर, आई मीन लिमसुक और लिमिन दोनों बराबर, सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, सो दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल। हाँ, वही तो हम थर्ड में डिस्कस, सेकेंड ऑप्शन 2 में डिस्कस किया थे। अगर लिमसुक और लिमिन दोनों बराबर है तो उसके मैंने सीक्वेंस कन्वर्स कर रहा है। सीक्वेंस कन्वर्स कर रहा है मतलब सर्टन टर्म के बाद काइनेक्स का हर मेंबर 0 दे रहा है, 0 पे जा रहा है, उसका मतलब x n से नहीं है। सर्टन टर्म के बाद, mth टर्म के बाद, सो mth टर्म के बाद x डज नॉट बिलोंग कर रहा है n से। ओके, सो ये फोर्थ ऑप्शन सही है ऑटोमेटिकली। ये इसको मैं यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वही था, इसीलिए हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। वही लिखा है जो कंसेप्ट में डिस्कस किया, उसको ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वो जो कंसेप्ट में बताए आपको सही लगेगा। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी comfortable to you, then you like and share it, and otherwise comment on below. Okay, thank you.